ہو رہا ہے اور بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ اپنے نمائندے کے انتخاب کے لیے اس وقت پریشان ہیں۔ اس ملک میں جو ہمارا پیارا وطن ہندوستان ہے ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی عمارت 4 ستون پہ کھڑی ہے۔ سب سے بڑا ستون اور اہم ستون عدلیہ کا ہے، دوسرا ستون ان کا قانون سازیہ کا ہے، تیسرا ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ کا ہے اور چوتھا ستون جو ہے وہ آپ کا میڈیا کا ہے۔ غیرت مند مسلمانوں اور دلتوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ پیارا وطن ہندوستان جس کی عالی شان قدیم عمارتیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں، لال قلعہ کے وہ سرخ پتھر ہوں یا پھر تاج محل کے وہ چمکتے ہوئے سفید پتھر، اگر خدا ان کو زبان دے دے تو پکار پکار کر یہی کہے کہ غیور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کی تعداد تو تم سے بھی کم تھی لیکن تم اس ملک کا سلطان بنے ہوئے تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر جگہ راندے درگاہ ہو گئے ہو، جو چاہتا ہے تمہیں ٹھوکر لگا دیتا ہے، تمہاری ٹوپی اچھال دیتا ہے، تمہاری مسجدوں کے سامنے میں کل جو منتیں کرتے تھے آج پتھر لے کر تمہارے مسجدوں پہ وہ پھینک رہا ہے۔ یہ مقام غیرت ہے اور مقام احتساب ہے کہ ہمیں اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ یقین جانیے ہمارے کھونے پانے کا احتساب جس دن ہم کر لیں گے، ہماری یہ درگت آج ہے جو ہماری حیثیت لوگوں نے آج گرد و غبار کی طرح کر دی ہے، یقیناً ہے کہ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے اور تاریخ بدل سکتی ہے۔ کام تو بہت سارے کرنے ہیں، اخلاق و کردار میں ہمیں آگے آنا ہے، ہمیں اپنے ایمان و اعمال درست کرنے ہیں، اس کے بغیر تو ہم مسلمان کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اور یہ وطن جو پیارا ہندوستان ہے، اس کے آئین نے ہمیں برابری کا حق دیا ہے، ہم کسی کے سامنے میں گردن جھکا کے رہنے والے ہیں، چونکہ ہم 2 حیثیتوں سے ممتاز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں فکری اور ایمانی اعتبار سے ممتاز بنایا ہے، اس لیے ہم احساس کمتری سے کا شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ تاریخ کی نظروں نے وہ دور دیکھا ہے ہمارا، ہم نے حامان کا اور فرعون کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے نمرود کا مقابلہ کیا ہے، وقت کے نمرود کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آج ابراہیمی قوت اور موسمی طاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صفوں کے تناظر کو ختم کرنے پڑے گی۔ آخر اس بستی میں رہتے ہو، عرب کی صحرا کہ لوگ یہیں سے سوار ہو کر جاتے ہیں۔ عرب سے پہلے ایمان کی دعوت بھی اسی حلقے میں آئی، لیکن اگر مسلمانوں یہ ملک سیکولر ہے، جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا سکھوں کا ہے، جتنا عیسائیوں کا ہے اتنا دلتوں کا ہے، جتنا گوڑوں کا ہے اتنا کالوں کا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کچھ لوگوں کے عبادت خانے میں لاؤڈ اسپیکر سے آواز نکل رہی ہے اور اس کائنات کے خالق اور مالک کا نام بھی لاؤڈ اسپیکر پر دینے کی اجازت نہیں ہے؟ کبھی غور کیا کس چیز نے آپ کو یہاں پر پہنچایا؟ بادشاہ کا جو عزیز ہوتا ہے وہ ملک میں عزت والا ہو جاتا ہے، اور رب کائنات کا نام جو بلند کرنے والا ہو اس کی یہ درگت ہو۔ ذرا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے درمیان میں بہت ساری خامیاں پیدا کر لی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کے پر ذرا تذکرہ کیا جائے، لیکن ہاں یہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ اس ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اب بھی آپ پر رحم کیا ہے کہ آپ اس ملک میں ووٹ کی طاقت سے عدالت کا جج نہیں چن سکتے، اس ملک میں ووٹ کی طاقت سے آفس کا کوئی چپراسی بھی نہیں چن سکتا، ووٹ کی طاقت سے کوئی میڈیا ہاؤس بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے عقل، حکمت، ذہانت سب چیز کی ضرورت ہے، لیکن ووٹ کی طاقت ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے اپنے پسند کے نمائندے کو آپ چن سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کہیں مسلکی اختلافات، کہیں ذات پات کی تفریق اور کہیں سکوں سے دوستی رشوت کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے وقار کو آج مجروح کر دیا۔ ہم آپ کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین کا یہ شہر جسے وہ رسول بلاد اور فائنانشل کیپٹل کہا جاتا ہے، اس کے مسلمانوں کی مدد سے ہندوستان کے بہت سارے اندھیری بستیوں میں چراغ روشن ہوتے ہیں، بہت سارے مکاتب چلتے ہیں، بہت سارے مدارس چلتے ہیں۔ اے بمبئی کے لوگوں، یہ الیکشن پارلیمنٹ اسمبلی کا نہیں ہے، لیکن پورے ہندوستان کی نظر یہاں پر جمی ہوئی ہے کہ اب کی بار آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد میں اکثر یہ کہتا ہوں، اور معاف کریں میری بہنیں، میں تمثیلاً کہتا ہوں کہ اگر کسی پر شادی کے 10 سال 12 سال ہو جائے، اڑوس میں کوئی بچہ نہ ہو تو اڑوسن اور پڑوسن کے بچے کو گود دیں، اور کبھی کبھی تو بلی کے بچوں کو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی خواتین بچوں کو گود مسئلہ 12 برس کے بعد ان کا خوش میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک کالوکاری بچہ دے دے تو اس کی پیشانی چومے گی کہ نہیں؟ تو یہ کالوکار کا بچہ نہیں بلکہ 70 سالوں کے درمیان میں مسلم کی عدد 5 ہو گئی تھی، کوئی ایسا مسلم کے بعد جو پوری قوم کو خبر کر سکے، پورے قوم کی درد و آواز بن سکے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی کی شکل میں ہمیں ایک ایسا نیتا ملا ہے جو پورے ہندوستان میں آج غریبوں کی، دلتوں کی، مظلوموں کی آواز مانتا ہے۔ کیا وہ 5 عورت کو اپنے کالے کلوٹے بچے کی پیشانی کو چومے گی؟ مسلمانوں غیرت نہیں آئی کہ اب بھی دوسرے لیڈروں کے پیچھے تم چل رہے ہو؟ مجھے پتا ہے ان لوگوں کے لیے لوگ جھنڈا لے کر کھڑا رہے ہیں، اور اس میں کوئی مسلمان بھی ہے جن لوگوں نے بابری مسجد کا تماشا ہمیں کرایا، جن لوگوں نے اسی بھیڑنڈی کو برباد کیا،
ताला और कोटा में हमारे नौजवानों को जिसने गिरफ्तार किया, क्या उसके झंडे को लेकर तुम आज चल रहे हो? गैरत नहीं आती तुमको? जरूरत पड़ेगी तो बड़े शैतान के मुकाबले में छोटे शैतान का हम साथ दे सकते हैं, लेकिन जहां हमारी कुव्वत है वहां हम सच्चे लोगों का साथ देंगे, किसी जालिम की ताकत को हाथ नहीं बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब समाजवादी ने हमारा बड़ा दिल बांटा है, याद नहीं है? एक दो नहीं 72 लोग जीते थे समाजवादी में, जब मुजफ्फरपुर में बहनें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये समाजवादी के लीडर ना जो तमाशा देख रहे थे, बहनों की गैरत में शर्म नहीं आई थी। ऐसे बेशर्मों और बेगैरतों के दरमियान में हम अपने वोट को बिखरने देंगे? आज मुसलमानों क्या हो गया है नहीं देखते हो? आज मोहल्ले में तुम्हारे सड़कें नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही है, बिजली रोशनी का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाता, और यही मोहल्ला है, यही हल्का है जहाँ सड़कें बनी हुई है, तोड़ के बनाई जाती, नाली पर नालियां बनाई जा रही है। आपके साथ क्या किया जा रहा है? एक छज्जी कोई बढ़ाए तो फौरन दलाली होने लगती है और पैसा की वसूली होने लगती है, दादागिरी होने लगती है। अपने खून और पसीने की कमाई से आशियाना भी बनाता है, तो दादागिरी को बगैर वचन दिए हुए तुमको कोई निजात नहीं मिल पाती है। इन जालिमों से बदला लेने का वक्त यही आ गया है कि हमको अपनी गैरत के नाखून लेने होंगे और इन जालिमों के खिलाफ हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वोट नहीं है, मैंने अक्सर कहा है कि वोट नहीं है, ये तलवार है, ये तलवार आपकी अपनी तलवार है, फैसला आपको करना है। तलवार किनके हाथ में देनी है? लूले के हाथ में तलवार लोगे, तलवार भी चली जाएगी। अगर किसी जालिम के हाथ तलवार लोगे तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दनें भी काटी तुम्हारी जाएंगी। और किसी ईमानदार को, किसी समझदार को, किसी बहादुर को तलवार लोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की रखवाली करने का काम करेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं यकीन और इत्मीनान के साथ कहने का हक बजा लूं कि इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों के दरमियान में हमारे उम्मीदवार में कुछ कमी हो या बेसी हो, लेकिन जो हमारा अमीर है उसने अपने तमाम लोगों को रखा है कि जब भी जुल्म किसी के घर में होगा, अगर वो आवाज नहीं उठा सकता तो फिर एमआईएम का खादिम और सिपाही बनने का आज नहीं रहेगा। आज लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार और जिंदगी में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, कीमत गिरते गिरते पाताल चली गई है। लेकिन ये जुनूनी कौम है, ये पागल कौम है कि अपने लीडर के नाम पर वोट देती है, चाहे कोई भी हो, मेरा लीडर है और मेरा वोट है। गैरतमंदों के अपने लीडरों को नहीं पहचानोगे? तुम्हें तो सबक पढ़ा गया था कि तुम कहीं गर्दन को झुकाओगे, कहीं तुम्हारी गर्दन तो उठने के लिए आई है। गर्दनों के कटने का जो डर लगता है वो कभी अहले ईमान नहीं बन सकता, क्योंकि खौफ और ईमान एक सीने में तय करते हैं। न करबल में, न मकबल में, न शाह के आगे मोमिन तो झुकता है फकत अल्लाह के आगे। ऐ मुसलमान, इस मुल्क में मुसलमानों की तरफ बात करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि इस मुल्क में दलितों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सबसे पहले गले का किसी ने लगाया है। तकरीब इंसानियत का अगर पैगाम दिया है, मानवता का संदेश दिया है, उन दलितों को इंसान होने का किसी ने यकीन दिलाया है, तो हमारे आप आवाज ने दिलाने का काम किया है। आज भी उन पर जुल्म होगा तो सबसे पहले हम आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस मुल्क में आप वकार के साथ रहेंगे या बेवकती की जिंदगी गुजारेंगे, इस बात की परवाह न करो कि मैं हारूंगा जीतूंगा। हार और जीत की परवाह अगर ईमान नहीं करते तो उनके दोनों हाथों में लड्डू लिया है, खड़ गए, शहीद हो गए, जीत गए तो गाजी बन गए। और आज से पहले आज 1970-71 के दरमियान में उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, और जनसंघ के लोग डरे डरे रहते रहे। जनसंघी को वोट देने वाला भी डर से नहीं बोलता। एक चौराहे पे 5 की दुकानदार था, उसने जनसंघी ने कहा, उसके पड़ोस ने कहा कांग्रेस को वोट दिया, तो सीना चौड़ा करके बोल रहा था सरकार मेरी बनने जा रही है। उसने कहा कि तुमने किसको वोट दिया? कहा कि मैंने वही अपना दिया छाप को दिया, जनसंघ को दिया। कहा कि तेरा नेता कभी जीतेगा क्या? वो तो गधे में वोट डाल के तुम आए। सुन लो उस पार्चन वाले की गुफ्तगू। उसने क्या कहा? साहब अगर गढ़ा है तो हर साल 2-4 टोकरी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बढ़ेगा। और आज देख लो कि 1970 में जो गढ़ा था आज वह हिमालय पहाड़ बन गया है। और लाल किला के फसील पर बैठे वालों तुम नफा और नुकसान का हिसाब करते हो। ये कह दो कि मेरा लीडर असदुद्दीन अवैसी है, उसका जो फैसला होगा हमको मिलना कबूल होगा। क्योंकि ये जमात जिस दिन इमामत को तस्लीम कर लोगे उस दिन इस हिंदुस्तान में तुम्हारी हमारी तारीख बन जाएगी। इसलिए हम आपके सामने आए हैं एक कलाकार दरख्त जो आज पूरे हिंदुस्तान में साया फलक है। जुल्म की बिजली जहां भी गिरे, जुल्म की आंधी जहां से भी उठे, जुल्म का सूरज कितना भी तपिश हो, अगर कोई साया तलाश करता है तो दिल्ली की तरफ नहीं, मुंबई की तरफ नहीं। सारे लोगों को एक ही तवक्को होती है कि हमारा हैदराबाद का हमारा ईमान क्या बोलता है, और सारे लोगों की उम्मीदों का मरकज बना हुआ है ये सदर सायाबान। अगर इसकी टहनियों को तरक्की देना चाहते हो, इसके तंत्र को और तनाव बनाना चाहते हो, यकीन है कि हमें इख्तिलाफात खत्म करने होंगे। हमें अपने सफल में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और यकीन जानो इस इलेक्शन से न असेंबली की हुकूमत, न स्टेट की हुकूमत बनने जा रही है, न स्टेट की हुकूमत गिरने जा रही है, न इस इलेक्शन से मरकज की हुकूमत गिरने जा रही है, न बनने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी
जिनके हाथों में हुकूमत है वो किस तरह परेशान है। और परेशान हाल मुसलमानों ये समझ लो कि अगर तुम वोट देते हो एमआईएम को, यकीनन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के नाम पर जो दरख्त तुम्हारे दरमियान में साया फलन है उसकी जड़ों को बसते हो। अकलमंद वही रहा है जो दरख्त साया दे उसकी जड़ों को पानी डालने का काम करता है, कुल्हाड़ नहीं चलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बार आप एक जाय किए बगैर एमआईएम को देंगे। ये सर साहब के दरमियान में खड़ा है। यहाँ भी बिहार की आबादी के कुछ लोग होंगे, यूपी के लोग हैं, यहाँ महाराष्ट्र के मुस्लिम लोग हैं। हम लोग 5 जीत कर आए थे 2020 में। जानते हैं क्या हुआ? पूरा सलसला बर्बाद हो गया इन बाकी ताकतों के दरमियान। ये क्यों जीत के आ गया? ये हमारे आलिमों को अपनी महफिलों में बैठाना चाहते हैं, हमारी बुर्काबाज बेटियों से भी इलेक्शन के जमाने में कंपेन कराना चाहते हैं। लेकिन जब अकलियत का कोई फर्क जीत के आता है तो उनको बड़ी बेचैनी हो जाती है और इन जालिमों ने हमें तोड़ने का काम किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके हवाले से मैं बिहार और सीमांचल के आवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि क़यादत क्या चीज होती है। क़यादत को महसूस किया है मैं, क़यादत क्या चीज होती है। हमारे बहुत सारे जुम्मन भाई अक्सर ये जुमले माजर के मंच से होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। क़यादत का एहसास उनको है, क़यादत का एहसास यतीम बच्चे से पूछो जिनका बाप कभी अपने बच्चों को ईदगाह ले जाता है। जब कोई यतीम बच्चा कोई किसी का उंगली पकड़ने का लायक नहीं होता है उसको एहसास होता है कि बाप का साया क्या होता है। क़यादत क्या है? मैंने तमसीलन कहा है कि इंसान 90 किलो के वजन का हो, बहुत सेहतमंद हो, उसके जानू कट जाए कि हाथ से 15 किलो का वो लंगड़ा पहलवान कहलाएगा। बाजू कट जाए वो लूला कहलाएगा। 15 किलो उसके जानू का वजन था, 8 किलो उसके बाजुओं का वजन था। बाजू कट गए, जानू कट गए, लेकिन इंसान बाकी था। लेकिन इत्तेफाक से उसकी गर्दन काट दी जाए जिसका वजन 4 किलो सिर्फ है तो फिर वो इंसान बाकी नहीं है, बल्कि जिस जिस्म में गर्दन नहीं है, जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है। यकीन करो नौजवानों, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानेंगे लाश है। अब हम लाश बनकर नहीं रहना चाहते, हम अपनी कौम में लीडर पैदा करना चाहते हैं। और इसी वजह से बिहार से नारा चला था। अभी बहन हमारी नारा लगा रही थी, आधी ही नारा लगाई थी, हम उसको मुकम्मल कर देना चाहते हैं। हम लोगों ने यही देखा, हम आपकी दुआओं से 5वीं बार बिहार की असेंबली में आने का मौका मिला। मैंने सेकुलर पार्टियों को भी देखा और आज अपनी जमात का वहां पर अमीर भी। मुझे लोगों ने कहा अख्तर उल ईमान, अरे तुम बड़ी पार्टी में थे, रहते तो वहां पर मिनिस्टर बन जाते, या अपनी पार्टी में बिल्कुल जैसे लगता हो बड़े गांव की बस्ती में दलितों का कोई घर हो। तुम क्या मालूम आजादी? अगर कोई परिंदा आजाद जिसकी फितरत है, पिंजरे में तुम उसको सारे फल लाकर दे दोगे और बाहर वो खजाना भी चुने, वो परिंदा आसमान की फिजाओं में उड़ना चाहेगा, कैद में नहीं चाहेगा। और जो गैरतमंद होता है वो कैदी बनकर नहीं रहना चाहता है। मैंने कहा जानो, मैं कल उस पार्टी में था और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी का नाम लोग कांग्रेस कहते हैं। याद है लोगों, बाबरी मस्जिद का गम अपनी जगह, बम्बई के भयमंडी के फसादात अपनी जगह, दादा कोटा के नाम पर आपके बच्चों को जवानों की जिससे गला दिया, इन जालिमों की दास्तान जो जुल्म भी आंसू बहाने लगेंगे। मैं नापाक इनके किस्सों को सुना नहीं चाहता, लेकिन ये दर्द की बात है 2014 में ये बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था और वहां पर एक आलिम दीन हजरत मौलाना असद कासमी साहब वो भी मेरे मुकाबले में खड़े थे। जब मुझे खदशा हुआ कि हमारे दोनों के वोट में तकसीम हो जाने के नतीजे में या फिर बीजेपी की साजिश का हम शिकार हो चुके हैं, हम इलेक्शन को छोड़ दिया था। लोग इंसान और कुर्बानी का जुमला बोलते हैं, ये सबके बस का रोग नहीं, मैं इस पर फख्र नहीं करता, लेकिन अल्लाह तबारक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे पाए इस्तिकामत को कहीं डोलने नहीं दिया। जानते हैं खुशी थी कि चलो मैंने जीता, कोई तो जीता, लेकिन जब मामला ये आया, एक मोमिन का ये फरीजा है कि अगर मेरे घर पर कोई कीचड़ भी फेंके हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे घर में कोई गोबर भी फेंके बर्दाश्त कर लेंगे, मेरी गर्दन को कोई मोड़े बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे आलिम की दाढ़ी कोई नोचेगा तो गर्दन कटाकर हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम अपने ऊपर कोई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। शरीयत पे हमला हुआ, तलाक बिल की पेशी हुई, मौलाना असद कासमी के बयान सुन लो, डब्बेबाजी हुई आंखों में, सोशल मीडिया पर आज भी उनकी शहादत बाकी है। क्या कहा उन्होंने कि जब तलाक बिल की नापाक पेशी हुई थी, मैं जान रहा था कि शरीयत पर हमला है, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी कांग्रेस ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। चांदीवली के लोगों, अगर गैरत ईमानी बाकी है तो कांग्रेस के नाम पर जो भी दामन फैला गया उनसे शरीयत पर जब हमला हुआ तो पहले पहले मेरे आलिम को तुमने बोलने नहीं दिया, आज वोट की जरूरत है, तुमको अपनी गली में भी हम बोलने की इजाजत नहीं है। ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, रिश्ते नहीं होगे, तो फिर तुम्हारी तकदीर और तारीफ नहीं बदलेगी। इख्तिलाफात हो सकते हैं मशवरे पर, लेकिन मशवरे के बाद जो फैसला हो जाए, हमें तमाम तरह इख्तिलाफात क्या उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने वजाहत की, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम बगैर जमात के, और जमात
बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर वो जमात के साथी थी। आज बाकी ताकतों को देख लो, उनके अकीदत के बेशुमार इख्तिलाफात हैं, लेकिन उसने आज अपने ईमान को तस्लीम कर लिया है, बातिल होने के बावजूद भी कौम गालिब। और तुम हक पर रहने के बावजूद भी टूटे हुए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपसे इख्तिलाफात को हमें तोड़ डाला है। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, आप नन्हे मुन्ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के लिए, इस मुल्क के संविधान के हिफाजत के लिए, जब तक आप मजबूत लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तब तक इस मुल्क में आप चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। और उसके लिए जरूरी है कि वहां के लिए आपको लोकल इकाइयों को भी मजबूत करनी पड़ेगी। लोकल इकाइयों का जो नुमाइंदा होगा वो आपके लोगों को एहसास कमतरी के समंदर में डूबने नहीं देगा, अपनी गैरत को बेदार करके रखेगा। जब कोई कौम अपनी गैरत का सौदा कर लेती है, पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, जब छुपा तो गैर के आगे न तन तेरा दमन। इसलिए हम अपने वोट को, ये वोट क्या है? ये वोट शहादत है, ये वोट अमानत है, ये वोट वकालत है। इस वोट की शहादत देनी है। कल तक तो आप वोट देते थे पर्चों पे, आज शायद आपको क्या ईवीएम होने जा रहा है? ईवीएम में तो ईवीएम में होगा तो शहादत की उंगली दबाओगे। शहादत की उंगली दबाते हो जिस वक्त क्या गवाही देते हो कि इन लोगों में ये अहल है। तो इसलिए लोगों हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि बैरिस्टर सुबिन अवैसी की आवाज को ताकत देने के लिए हमारे नुमाइंदे जहां खड़े हैं उनको मजबूत करने का काम कीजिए। अगर आप उन्हें देंगे वोट तो हिंदुस्तान के कमजोरों को मजबूती मिलेगी। उनको वोट देंगे तो हिंदुस्तान के मुस्लिम अमीरों की अमीरों को ताकत मिलेगी। अगर हमें वोट देंगे तो इस मुल्क में आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ आइन की हिफाजत करने वालों को भी ताकत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक एक वोट, नौजवानों मैं तुमसे तुम्हारी जवानी की गैरत की कसम देता हूँ, तुम किसी के चाय और पैसे पीकर ठंडे की बोतलों के जरिए से जेब में कुछ पैसे दे दे, तुमको बिरयानी का पार्टियां दे दे, यकीन जानो दौलत की पैसे की बुनियाद पर जो अपनी इज्जत का सौदा करे लोग उसे पूरे लक़ब से याद करते हैं। लेकिन यकीन जानो पैसे की बुनियाद पर जो अपने जिस्म का सौदा करे वो तो गुनहगार है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर जो अपने ज़मीर का सौदा करे उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। इसलिए हम अपने ज़मीर का सौदा होने नहीं देंगे। अपना एक एक वोट अल्लाह की अमानत समझकर, एक एक वोट इस मुल्क के दस्तूर और आइन की हिफाजत के लिए हम बैरिस्टर सुबिन अवैसी के नाम पर उनका सिपाही कहाँ खड़ा है उनको मजबूत करने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे ज्यादा भरोसेमंद हैं और आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल एमआईएम के हक में, अब्दुल रहमान के हक में, सब्र आलम के हक में, और ये वोट समझो बैरिस्टर सुबिन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। इनकलाब इनकलाब वो बिहार से जो नारा उठाया लगा दोगे, साथ दोगे। 70 सालों तक इनका साथ दिया कि नहीं, इन पार्टियों का जो अपने आप को सेकुलर कहती है, सबने दगा दिया कि नहीं हमारे साथ? तो आओ नारा लगाओ, सबने दिया है हमको चोट नहीं। सुनो, मैं तुम्हारी पेशानियों की लकीरों को देख रहा हूं, बड़े जज्बाती नौजवान, जो आवाज यहां उठे तो पूरे महाराष्ट्र में उसकी घोड़ी सुनाई देनी है। और जो मैं बोलूं वही दोहराऊं, जो मैं बोलूं वही दोहराऊं। आवाज में कैसी रहो, तांगी होगी, स्वानित नहीं होगी। आवाज फलक से समझ तो, फलक से आसमानों को चीरने वाली आवाज लगाओ। सबने दिया है हमको चोट, मुट्ठी हो तुम्हारी बंधी हुई, आवाज में करख्त हो और चेहरे पे गुस्सा हो। जुल्म के खिलाफ गुस्सा करना सवाब है, जालिमों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बोलो सबने दिया है हमको चोट। देखो नहीं हुआ तो मैं अभी कह दूं तो बहने लगाएंगी आवाज, अगर दालों से तो इससे बढ़ जाएगी। बोलो सबने दिया है हमको चोट। देखो तो पड़ोस में किस किस का हाथ नहीं उठा है, अगर बाजू में अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो, यहाँ पर कोई रकम भेज दिया जाए उनको। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब देंगे इन बेईमानों को वोट, अब देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब इनकलाब बैरिस्टर सुबिन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, भाई सब्र आलम, भाई अब्दुल रहमान,